السلام علیکم ناظرین، دکن ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سنکرانتی کے بعد بی پی ایل خاندانوں کے لیے راشن کارڈ کی اجرائی کا عمل شروع ہوگا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کا کونسل سے اعلان۔ حکومت کے خلاف بی آر ایس پارٹی نے دی مراد شکنی کی نوٹس۔ سرپنچوں کے بقایا جات پر واک آؤٹ۔ لاگت چرلا مسئلے پر ارکان کی ہنگامہ آرائی۔ جاریہ تعلیمی سال ڈیٹینشن نہیں ہوگا، ہزاروں طلباء کو ملے گی راحت۔ اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر وزیر صحت کا اعلان۔ وقف ترمیمی بل، مسلمانوں کے آئینی حقوق پر راست حملہ، ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں منعقد تحفظ آئین و قومی یکجہتی کانفرنس سے مولانا ارشد مدنی کا خطاب۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو نے پولاورم پروجیکٹ کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا لیا جائزہ۔ کہا پولاورم پروجیکٹ ریاست کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا ثابت۔ سرخی ہم نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے نئے راشن کارڈ کی اجرائی کا عمل سنکرانتی کے بعد شروع ہوگا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں آج وقفے سوالات کے دوران ریاستی وزیر نے کہا ہے کہ جلد سے جلد اس عمل کو پورا کیا جائے گا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ جو سروے ہوا ہے اس کے ریکارڈ کے مطابق تنقیح کے بعد کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ بی آر ایس پارٹی کے ارکان اسمبلی نے تحریک التوا پیش کرتے ہوئے لاگت چرلا کے کسانوں کو ہتھکڑیاں ڈالنے کے مسئلے پر مباحث کا مطالبہ کیا اور شور و غل برپا کیا۔ اس سے پہلے اسمبلی احاطے میں بی آر ایس ایل پی کے دفتر سے بی آر ایس ارکان اسمبلی نے پلے کارڈز کے ساتھ ایوان اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے ارکان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں اسمبلی کو چائے کے وقفے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو یہ ارکان اسمبلی پلے کارڈز کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اسپیکر نے جب ٹورزم پالیسی پر مختصر بحث کا اعلان کیا تو بی آر ایس سرکار نے زبردست شور و غل کیا اور پلے کارڈز تھامے ہوئے نعرے بازی کی۔ اسپیکر اور دیگر وزراء نے ان کے رویے پر شدید تنقید کی، لیکن بی آر ایس سرکار نے اپنا شور و غل اور نعرے بازی جاری رکھی۔ اسپیکر نے مارشل کو ہدایت دی کہ ارکان کے پاس سے پلے کارڈز لے لیں، لیکن ارکان نے شور و غل میں اضافہ کر دیا، جس کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی منگل تک ملتوی کر دی۔ ایوان اسمبلی میں گرام پنچایت منڈل پریشد کے بقایا جات کی ادائیگی سے متعلق سوال پر بی آر ایس پارٹی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا ہے۔ ہریش راؤ نے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں بڑے کانٹریکٹرز کو 1200 کروڑ روپے ادا کیے گئے، جبکہ سرپنچوں کو 691 کروڑ ادا نہیں کیے گئے۔ دیہاتوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو چوکنا کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کا دورہ نہ کریں۔ چکن گنیا کے شکار لوگ ہو رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت کب بقایا جات ادا کرے گی، اس کا خلاصہ کریں۔ اس سوال پر بی جے پی کے رکن اسمبلی کے وینکٹ رمنا ریڈی نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کے درمیان سرپنچ پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر ارکان نے بھی حصہ لیا۔ وزیر سیتا اکا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سرپنچوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ ذات پات کی مردم شماری کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے۔ جو بھی بقایا جات ہیں یہ بی آر ایس حکومت کے ہیں۔ سیتا اکا نے کہا ہے کہ حکومت نے گرام پنچایت کو 740 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اس وقت کے وزیر فائنانس ہریش راؤ اگر ایک دستخط کرتے تو بقایا جات نہیں ہوتے۔ وزیر موصوف کے جواب سے عدم اطمینان بی آر ایس پارٹی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا ہے کہ کسان اگر اراضی نہیں دیں گے تو جیل میں ڈالیں گے۔ اسمبلی کو کل تک
मुलतवी करने के बाद बीआरएस सरकार असेंबली ने ऐवान के बाहर बाबूद दाखिले पर एहतजाजी धरना दिया और नारेबाजी की। बाद में केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्ज के नाम पर हुकूमत ऐवान को और अवाम को गुमराह कर रही है। हुकूमत ने जो झूठ बोला है, आरबीआई की रिपोर्ट ने इसका खुलासा कर दिया। इन्होंने कहा है कि ऐवान को गुमराह करने के लिए हुकूमत के खिलाफ मराद शिकनी की नोटिस भी दी गई है। अगर हुकूमत अपने हिसाब किताब दुरुस्त कर ले तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। इन्होंने कहा है कि अरकान के प्रोटोकॉल के खिलाफ शिकायत की गई। केटीआर ने कहा कि लागत चरला के किसानों को जेल में डाला गया, उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। इस मसले पर मुबाहिस का मुतालबा किया गया तो हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली। केटीआर ने कहा है कि कोड़ंगल के किसानों के साथ बीआरएस पार्टी है और किसानों के लिए बराबर जद्दोजहद करती रहेगी। చేయని తప్పుకు ఏ తప్పు చేయకపోయినా కేవలం తమ భూమి తమకే ఉండాలని కోరుకున్నందుకు తమ భూమిని ప్రభుత్వం గుంజుకుంటుంటే ప్రతిఘటించినందుకు మా భూమి మేము ఇయ్యం అని చెప్పిన పాపానికి ఇవాళ కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని లగచర్ల గ్రామానికి సంబంధించిన గిరిజన రైతులు, దళిత రైతులు, బలహీన వర్గాల రైతులను గత 30 రోజుల పైచిలకు జైల్లో పెట్టిన నికృష్టపు ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. ఎంత అప్రజాస్వామికంగా అంటే తమ భూములు తాము ఇవ్వము అంటే వారి మీద కేసులు పెట్టడమే కాకుండా వారిని 3rd డిగ్రీ టార్చర్ కూడా పోలీస్ కస్టడీలో గురి చేసినారు. అక్కడ ఉండే ఎస్పీ कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी ने आज JNTU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजेस के तलबा के एक अहम मसले को ऐवान असेंबली में उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि JNTU, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और ऑटोनमस कॉलेजेस में निसाब, डिटेंशन पॉलिसी और पासिंग मार्क्स के कवायद एक जैसे होने चाहिए। अकबरुद्दीन अवीसी ने बताया कि JNTU में क्रेडिट मार्क्स 25 हैं जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 50 रखे गए हैं। ऑटोनोमस कॉलेजेस तलबा को प्रमोट करते हैं। उनका कहना था कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ का निसाब एकसा होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ की अलग पॉलिसियों की वजह से तलबा को नुकसान हो रहा है। अकबरुद्दीन अवीसी ने इंजीनियरिंग तलबा के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का भी मसला उठाते हुए कहा है कि इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट तलबा की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की पॉलिसी पर भी अमल होना चाहिए। अकबर अवीसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज की मियाद पर भी तवज्जो दिलाई और कहा कि इस सिलसिले पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ इजलास तलब किया जाए और एक पॉलिसी वाज़ेह की जाए। इस साल कवायद में नरमी की जानी चाहिए। ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए इन्होंने खुसूसी इंस्पेक्शन टीम पर भी जोर दिया है। दूसरी तरफ वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अकबर अवीसी के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि वो अकबरुद्दीन अवीसी की तजावीज़ का खैर मक़दम करते हैं। इन्होंने कहा है कि कॉलेजेस इंतज़ामिया के साथ इजलास की जो तजवीज़ है इस पर जल्द अमल किया जाएगा। वाइस चांसलर्स तलबा के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाएगा। हम डिटेंशन और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की मुद्दत और फ़ीस बाज़ अदायगी के उमूर पर भी इजलास में गौर करते हुए इसकी यकसोई करेंगे। So first and foremost, the most important thing is that, sir, we have JNTU University, sir, and also Usmania University, sir. And there are, I think, some 300 engineering colleges which are affiliated to JNTU, and there are some 10 colleges which are affiliated with Usmania University, sir. So now, the reason for me to raise this question is that, sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister Saab is the detention policy the same for Usmania University and JNTU University, sir? Sir, as per my information, sir, the detention policy in JNTU is, the credit score is 25, sir. That is 25%. Usmania University, sir, they've made it 50, sir. So why this disparity, sir? And sir, one more important thing which I want to bring to your kind notice,
and through you to the Minister Saab is that, sir, we have autonomous colleges also, sir. Sir, in the autonomous colleges, sir, they are very lenient and they are promoting the students, sir. And in this Osmania University, sir, I have the list, sir, a newspaper article which had come, sir, which says that in JNTU, sir, the credits are 25, sir, 25%. वहां पे passing percentage is 40%, sir. तो आप अंदाजा लगाइए, सर, अगर 50% अगर हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कर देंगे, तो what would be the passing percentage? Sir, also, sir, this is not only one disparity. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. My second question is that, sir, is there a disparity in the syllabus or not, sir? Sir, disparity, sir, in the scheme of instructions, course content, syllabus across the university colleges, constitute colleges, autonomous colleges and affiliated colleges, they have totally different syllabus, sir. So through you, I request the Honorable Minister Saab, sir, whether it is JNTU, whether it is Osmania or autonomous universities, sir, the syllabus has to be same. The rules have to be same. The detention policy has to be same, sir. Sir, also, sir, if we have to go into the next details, sir, I would like to ask the Honorable Minister Saab through you, sir, make up advanced supplementary exams, sir. Sir, Osmania University doesn't have such things, sir. Sir, through you, I request the Honorable Minister Saab, say it is suggested to hold a make-up exam or an advanced supplementary exam as mandatory for facilitating the students to get two opportunities so as to enable them to earn requisite credits. If implemented, the number of detained students may get decreased in subsequent years, sir. So the reason for me requesting this and giving this suggestion is that, sir, the dropout level is increasing in engineering students, sir. Sir, अब ये अगर 50% आ जाएगा, sir, तो और बच्चे drop out हो जाएंगे, sir. For in Osmania University, sir, engineering student के लिए 4 साल का कोर्स है, sir. सर, उनको ये बोल रहे हैं कि 6 साल में खत्म करो. MBBS, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, एनी अदर कोर्सेस, सर, इसमें डबल टाइम देते हैं, सर. अब आप यहां पे डिटेन कर रहे हैं, you're detaining them and again telling them to clear the engineering in 6 years. So this also needs to be corrected, sir. Sir, seeing all these issues, sir, through you, lastly, sir, I request the Honorable Minister Saab to please call for a meeting of the managements of the engineering college, also the students, and have a similar policy, sir. Let it be JNTU, let it be Osmania University, sir. And at least for this year, sir, at least for this year, sir, I request that this rule may be relaxed, sir, so that we can save the future and the career of the students, sir. Sir, most important thing which nobody is understanding, sir, Honorable Minister Saab has given me a reply, very good reply he has given, sir. I thank him for that reply, sir. लेकिन रिप्लाई में, सर, मिनिस्टर साहब ने कहा कि इतने बच्चे पास हुए. सर, आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, सर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, JNTU में, उस्मानिया में 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करना है, सर, JNTU में 25, सर. सर, ये I would like to know from the Honorable Minister Saab is that how many students have cleared all the exams, sir, all the papers, all the subjects. When we see that, sir, the percentage of clearance of all the subjects in Osmania universities, it is less than 20%, sir. So I once again through you request, sir, कि एक मीटिंग बुला लीजिए, बैठते हैं, रूल्स सबके लिए एक करिए, सिस्टम एक के लिए करिए, प्रमोशन के रूल्स भी एक करिए, सर, JNT होने दो ये. एंड लास्टली, सर, autonomous universities के लिए a special inspection team should be there, sir. They are just pushing the students. सर, वो एग्जाम लिखते नहीं लिखते, अच्छा लिखते, खराब लिखते, कुछ भी नहीं, सर. वो autonomous university है. They are just promoting them, passing them. Because of these autonomous universities, this lack, sir, ये कमजोरी की वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नौकरी भी नहीं मिल रही है, सर. These are my questions and I hope Honorable Minister Saab would relook into this, sir. Thank you, sir. महबूबनगर ज़िले मुस्तक़र में ग्रुप 2 इम्तिहानात के दूसरे दिन NTR डिग्री कॉलेज में ज़िले SPD जानकी
IPS और मल्टी जोन 2 के IG श्री सत्यानारायण ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर IG ने बताया कि महबूबनगर ज़िले में 54 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए, जहां 20,584 उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। इम्तिहान हॉल्स में इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन्स के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी और तमाम उम्मीदवारों को DFMD के ज़रिए चेक किया जा रहा था। ख़वातीन उम्मीदवारों की जांच के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। इन्होंने बताया कि मल्टी जोन 2 के तहत शामिल तमाम 9 अजला में मुतल्लिक़ा SP सख्त निगरानी कर रहे थे ताकि इम्तिहानात कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद हो सके। IG ने मज़ीद कहा कि इम्तिहानात मुकम्मल होने के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की हिदायत के मुताबिक सवालिया पर्चा मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ हैदराबाद मुंतकिल किए जाएंगे। आदिलाबाद ज़िले के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में CM कैंप कप ज़िले सतह खेलों के मुकाबलों का पीर के रोज़ धूमधाम से आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िले कलेक्टर राजश्री शाह ने की और शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। ज़िले कलेक्टर BY संतोष ने ज़िले SP श्रीनिवास राव के साथ पीर को गढ़वाल ज़िले मरकज़ के इंडोर स्टेडियम में ज़िलेई सतह के CM कप खेलों के मुकाबलों का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत देही और शहरी खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तरबियत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा है कि इन मुकाबलों का इनेकाद खिलाड़ियों की तैयारी के मकसद से किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि आलमी और शख्सियत की नशोनुमा के लिए भी अहम है और IAS और IPS जैसे इंटरव्यूज़ में भी खेलों से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं। हज सोसाइटी ज़िले महबूबनगर के ज़ेर एहतमाम महबूबनगर मुस्तक़र के JJR फंक्शन हॉल में मोहम्मद महमूद अली सदर ज़िले हज सोसाइटी महबूबनगर की सदारत में पहला हज तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना तस्लीम अंसारी, नायब सदर दारुल अरबिया कावरम पेटा ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इन्होंने अपने खिताब में हज के दौरान आज़मीन की जानिब से होने वाली गलतियों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने आज़मीन हज से कहा है कि हज अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। हज के दौरान भी जो मसाइब या मसाइल दरपेश होंगे इस पर सब्र करें। इन्होंने कहा है कि आज़मीन हज को चाहिए कि वहाँ अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारे, फजूल कामों में वक्त को ज़ाया ना करें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पीर के रोज़ पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए तामीराती कामों का मुआयना किया और पोलावरम का शेड्यूल जारी किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पोलावरम और अमरावती रियासत के लिए 2 आंखों के मानंद हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद दरियाओं को आपस में जोड़ना रियासत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट रियासत की लाइफलाइन है। इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट की तकमील से 7.20 लाख एकड़ अराजी को आपाशी के लिए पानी दस्तयाब होगा और 28 लाख लोगों को पीने का पानी फराहम होगा और 960 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। विशाखापट्टनम की सनती ज़रूरियात और पीने के पानी के लिए 23 TMC पानी फराहम होगा। इन्होंने कहा कि पट्टी सीमा प्रोजेक्ट के ज़रिए कृष्णा नदी को मजबूत किया गया है और मुस्तकबिल में कृष्णा से नागार्जुना सागर कनाल तक पानी ले जाने का मंसूबा है।
आंध्र प्रदेश के कड़पा में मुनक्किदा तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंदू कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस एक तारीख़ी इज्तिमा साबित हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, तबक़ात और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जमाअतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने खिताब में मुल्क में मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुत्तहिदा और मज़बूत मौक़िफ़ अपनाने पर ज़ोर भी दिया। मौलाना ने बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि आइन को कमज़ोर करने और अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिशें जमहूरियत के उसूलों के मनाफी हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दाम से न सिर्फ आइनी इदारे बल्कि समाजी ताने बाने को भी नुकसान पहुँच रहा है। इन्होंने बाबरी मस्जिद के मसले पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों की थी बल्कि वो हमारे ईमान का हिस्सा थी। हम अपने औक़ाफ़ और मसाजिद की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग़ नहीं करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को तलक़ीन की कि वो औक़ाफ़ की जायदादों को महफूज रखने के लिए पुरअमन और क़ानूनी जद्दोजहद करें। वक्फ़ बोर्ड तरमीमी बिल के हवाले से मौलाना मदनी ने हुकूमत को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के आइनी हुकूक़ पर बरह रास्त हमला है। अनंतपुर शहर के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस निहायत शान और शौकत के साथ मुनक़्क़िद की गई, जिसमें गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ अशरफ़ी और उनके फ़र्जंद सैयद नूरानी मियाँ अशरफ़ी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ अशरफ़ी साहब ने शान अहल बैत अतार सहाबा इकराम की फ़जीलत पर तफसीली रोशनी डाली। गाज़ी मिल्लत और ताजुल उलमा ने अपनी तकारीर में हाज़रीन को अल्लाह और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करने की तलक़ीन की। पिछले चंद दिनों से आंध्र प्रदेश में बारिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता इतवार को मुख्तलिफ इलाक़ों में हल्की बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक मंगल के रोज़ कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा में वसी पैमाने पर दरमियानी बारिशें होने की पेशन गोई की गई है, जबकि कुछ इलाक़ों में शदीद बारिश के इम्कानात भी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 तारीख को अंडमान के आसपास एक और कम दबाव का इलाका बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि इस माह के आखिर तक रियासत भर में बारिश का इम्कान मौजूद है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। प्रकाशम और नेल्लूर को छोड़कर बाकी रियासत में दर्ज हरारत में नुमायां कमी देखने को मिली है। एजेंसी के इलाकों में दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, चित्तूर, अनंतपुर और कर्नूल अजला में भी सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। पलनाडु ज़िले गरजला मंडल के पुलपाडो गांव के में पानी के तालाब में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में श्री चैतन्य स्कूल का 5वीं जमात का तालिब इल्म और स्कूल बस का क्लीनर शामिल है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दीपचापल्ली जाने के दौरान श्री चैतन्य स्कूल की बस ख़राब हो गई। बस के रेडिया टिप्पर में पानी ख़त्म होने पर ड्राइवर ने पानी लाने के लिए 5वीं जमात के तालिब इल्म को भेजा और तालिब इल्म करीबी तालाब में पानी लेने गया और इस दौरान वो तालाब में गिर गया। तालिब इल्म को बचाने के लिए पानी में उतरने वाला क्लीनर कोटेश्वर राव भी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। विकाराबाद ज़िले टास्क फोर्स पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से डीजल मुंतकिल करने वाले टैंकर को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियासत कर्नाटक में डीजल की कीमत तेलंगाना के मुकाबले में 10 रुपये कम है। ऐसे में चंद अफराद की जानिब से कर्नाटक से हैदराबाद के लिए टैंकर में डीजल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस को इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजल टैंकर को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दरिंदा सिफत बेटों ने अपनी बूढ़ी मां को सख्त तरीन सर्दी में सड़क पर छोड़ दिया। ये वाक़या प्रकाशम ज़िले मुरुलू मंडल के वेनपल्ली गांव का है, जहां 75 साला वेंकटम्मा लक्ष्मा अपने शौहर के वफ़ात के बाद अपने 3 बेटों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी और जायदाद की तकसीम के बाद बेटों ने अपनी मां को लाचार हालत में सड़क पर छोड़ दिया और इसकी बुढ़ापे की पेंशन भी खुद ही वो रख रहे हैं। मोहम्मद खातून की झोंपड़ी खस्ताहाल होने के बायस वो पिछले 1 हफ्ते से शदीद सर्दी में सड़क पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और बेहद तकलीफ़ में हैं। मुकामी अवाम ने खातून के बेटों के खिलाफ कार्रवाई करने और बूढ़ी खातून के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। संक्रांति के बाद बीपीएल खानदानों के लिए राशन कार्ड की इजराई का अमल शुरू होगा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का कौंसिल से ऐलान। हुकूमत के खिलाफ बीआरएस पार्टी ने दी मराज शिकनी की नोटिस। सरपंचों के बकाया जात पर वॉकआउट। लागत चरला मसले पर अरकान की हंगामा आराई। जारिया तालीमी साल डिटेंशन नहीं होगा, हजारों तुलबा को मिलेगी राहत। अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वजीर सेहत का ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के आईनी हुकूक पर रास्त हमला। हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में मुनक्किद तहफ़्फ़ुज़ आइन व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से मौलाना अरशद मदनी का खिताब। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए तामीराती कामों का लिया जायजा। कहा, पोलावरम प्रोजेक्ट रियासत के लिए एक गेम चेंजर होगा साबित। इसी के साथ दक्कन डायरी इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।